हाय हाँ न्यू बुक लेजर में બધું લેજર શું છે નામ અકાઉન્ટ્સ ના कैश अकाउंट છે પેલો તો then old नहीं ओडी ओडी પછી परचेज अकाउंट सर बैंक अकाउंट જ કરી લખે તો ના આવે बैंक જ લખ્યું છે બ્રેકેટ માં ઓડી લે પછી પછી કમિશન અને profit on sale okay yes what so all videos are on, off videos will be out one by one. Come on. Videos on. All of you take sum number 4. Dhruvi, Bhomik, Nimisha, all videos on. Last time. See, we are doing now sum number 4. Sum number 3 tak humne kar liya tha, right? We had finished till sum number 3. Give me a textbook. Share karna. Chalo. All of you come to sum number 4 now. Prepare necessary ledger accounts. Now tell me, in the last lecture we learned about ledger. What is ledger first of all? Book of first entry or secondary entry? Secondary entry, okay, secondary entry. But is it more important or less important than journal? More important. Analysis wise, it is more important than journal. Because in journal you record transaction date wise, but in ledger you do it account wise. एक एक account का detail तुमको जानना है तो कहाँ से पता चलेगा? लेजर से पता चल जाएगा, बराबर है? लेजर से विल कम टू नो द अकाउंट डिटेल्स, ईच एंड एवरी अकाउंट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब पता चल जाएगा. इसके लिए इसका दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. इसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. प्रिंसिपल माने इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल मतलब इंपॉर्टेंट. और सेकेंडरी बुक भी कहा जाता है. व्हाई सेकेंडरी बुक? Exactly. After recording the entries in journal, we post the entries into ledger. जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद कॉपी की जाती है लेजर में, बराबर. एवरी एंट्री इज कॉपीड, एवरी एंट्री इज कॉपीड इनटू ledger. Every entry. There is no such entry which is there only in journal but not in ledger. It is impossible. Okay. Every entry which is there in journal has to be copied in ledger. अच्छा, वो हमने देखा. उसके बाद लेजर में कॉपी करने का, पोस्टिंग करने का 3 स्टेप्स होता है. ये भी हमने देखा था. व्हाट आर द 3 स्टेप्स
to record the to post the entries in the ledger. What are the 3 steps? Step number 1, opening balance. Step number 2, posting, and step number 3, closing balance. What is opening balance? पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस. अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है उसका मतलब उसका पिछला महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं था या टैलीड अकाउंट था और ये महीने में फ्रेश चालू हो रहा है. ओपनिंग बैलेंस दिया है तो लिखने का, नहीं दिया है तो इग्नोर मारने का. बट अदरवाइज जनरली तीनों स्टेप्स होंगे सम में. पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर पोस्टिंग और फिर क्लोजिंग बैलेंस. इज दिस क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप के अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैलेंस, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस. लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड ऑफ एनी अकाउंट. So we discussed about that also. All assets will always have debit balance. All liabilities will always have credit balance. All expenses, debit. All incomes, debit. Assets will have debit balance. Liabilities, credit. Expenses, debit. And incomes, credit balance. Now, what do you mean by debit balance? The debit side is greater. If the debit side is greater, it is called debit balance. अगर अकाउंट में डेबिट टोटल बड़ा आ रहा है तो उसको कहते हैं डेबिट बैलेंस. मतलब यहाँ पे जो लिखा जाता है बाय बैलेंस सीडी और जो बनता है टू बैलेंस बीडी वो होता है डेबिट बैलेंस. व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट बैलेंस? Credit side of an account is greater. Credit side of an account is greater than debit side. That's called which balance? That's called credit balance. Credit side bada hai, so it's called credit balance. Debit side bada hai, so it's called debit balance. Is that clear? So credit bada hai, debit chota hai, it's called credit balance. Debit bada hai, credit chota hai, it's called debit balance. अच्छा, यहाँ का बाय बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या लिखते हो आप? सीडी के बीडी. सीडी बन जाता है ओपनिंग बीडी. ओके, अगर बाय बैलेंस सीडी है तो नेक्स्ट वन बन जाएगा टू बैलेंस बीडी. अगर टू बैलेंस सीडी है तो बन जाएगा बाय बैलेंस बीडी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. गॉट दैट? अच्छा, उसके बाद हमने 3 सम्स भी किए थे, कंबाइंड एंट्री भी की थी. कभी भी आपके पास कंबाइंड एंट्री आ जाए, धड़ाक से कंबाइंड एंट्री पे जंप मत मारना. क्या करना है आपको? स्प्लिट करके सिंपल एंट्री में कन्वर्ट करना है. सिंपल एंट्री में कन्वर्ट करके फिर पोस्टिंग करनी है. बराबर है? सो ऑन दैट नोट वी कंटिन्यू आगे. पहले शुरुआत कहां से करोगे? सीधी पोस्टिंग कर दोगे. ओपनिंग बैलेंस, 3 पार्ट्स ऑफ लेजर, 3 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 ओपनिंग, देन पोस्टिंग एंड देन क्लोजिंग. लेट्स बिगिन विद स्टेप नंबर 1. टेल मी कैश अकाउंट. देखो दिख रहा है, डेट भी दिया है, बैलेंस इज ऑन 1/1/10. कैन यू सी दैट? फर्स्ट डेट पे होगा वो, ठीक है, फिर महीने के ट्रांजैक्शन और फिर लास्ट डेट पे क्लोज. मुझे बताओ, कैश अकाउंट विल हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस. कैश अकाउंट विल हैव डेबिट बैलेंस. सो व्हाट विल यू राइट इन कैश अकाउंट? टू बैलेंस बीडी की बाय बैलेंस बीडी? टू बैलेंस सीडी ना? व्हाई बीडी? Because it is brought from where it is brought down? From December, from last month. कितना था? 5 ना? Oh sorry, 7,000. This is on 1/1/10. 1/1/10. Opening balance of cash is 7,000 brought from December. December बंद हुआ, January शुरू हुआ, यहाँ पे opening balance आ गया आपका 7,000 rupees. Is this clear? 1/1/10. All of you clear? 1/1/10 is the date. अच्छा, what does this mean? ये आप अकाउंटेंट हो, आप कैश अकाउंट देख रहे हो और आपको दिख रहा है यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या? बिजनेस में 7,000 कैश पड़ा हुआ है. दैट इज द मीनिंग, राइट? तो आपको तिजोरी में घड़ी घड़ी चेक करने की जरूरत है अगर आपने ऑनेस्टली सब कुछ रिकॉर्ड किया है तो, ठीक है. वरना ब्लैक वाले लोग क्या करते हैं, तिजोरी में रखते हैं 70,000 और इधर दिखाते हैं 7,000. अब रिकॉर्ड ही नहीं करते, वो ब्लैक का पैसा है. ओके, उस पर फिर टैक्स नहीं भर सको, उसमें रेड वेट पड़ेगा तो आप फंसोगे फिर, ऐसा. सो यहाँ पर ये हम अज्यूम करते हैं सब कुछ रिकॉर्डेड है, तो दिस इज 7,000. करण मैं लेक्चर में तेरे को फोन करता है बाद में. Now
बैंक का ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट नॉर्मली हैज विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस. बैंक अकाउंट नॉर्मली हैज डेबिट बैलेंस. सॉरी, ઓવરડ્રાફ્ટ છે એટલે શું થઈ જશે બેલેન્સ નું? ક્રેડિટ બેલેન્સ થઈ જશે. ઓવરડ્રાફ્ટ છે એટલે શું થઈ જશે? क्रेडिट बैलेंस. केम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट? हाँ देखो, आपका बैंक में क्या दिखता है? इधर डेबिट में पैसा आया और क्रेडिट में पैसा गया. तो जनरली ऐसा होता है कि पैसा आता ज्यादा है और जाता कम है. आता है समझो 1 लाख, जाता है 80,000, तो बचता है 20,000 आपके बैंक में. उसको बोलते हैं नॉर्मल बैलेंस. उसका मतलब आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है. ठीक है. ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? आया 1 लाख लेकिन पे कर दिया 1,30,000. आया 1 लाख और पे कर दिया 1,00,000. कर सकते हो. ये खाली किस में पॉसिबल है? बिजनेस का कौन सा अकाउंट रहता है बैंक? करंट अकाउंट. क्या ये सेविंग्स अकाउंट में पॉसिबल है? आपका घर पे जो अकाउंट है उसमें पॉसिबल है? नहीं है. उसमें तो आपके बैंक में 1 लाख है तो आप 1 लाख ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. ये ओडी फैसिलिटी किसको दी जाती है? बिजनेसमैन को दी जाती है. और वो भी ऐसे, करंट अकाउंट है तो ओडी मिलेगा ही मिलेगा ऐसा गारंटी नहीं है. मैं समझो बिजनेसमैन हूं, मैं बैंक में जाऊंगा, करंट अकाउंट ओपन करूंगा, बैंक मेरे को ऑब्जर्व करेगा 2-3 साल तक मैं अच्छे से बैलेंस रख रहा हूं ना, मैं डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा हूँ, कोई क्रेडिटर धमधम करके पैसा मांगने नहीं आ रहा है मेरे बिजनेस में, मेरा नाम अच्छा है, गुडविल अच्छी है, तो मेरा बैंक में ऐसा वो देखेगा कि 2-3 साल में हाँ मैं 8-10 लाख रुपए डालता हूँ और 6-7 लाख रुपए निकालता हूँ, 2-3 लाख एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरा बैंक में पड़ा हुआ है. तो बैंक बोलेगा ठीक है, ये सज्जन आदमी है, ये पूरा पैसा खाली नहीं करता है, इसको ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है बिजनेस में, चलो इसको लोन देते हैं, चलो इसको उधार देते हैं. तब वो ओडी फैसिलिटी आपको सैंक्शन करता है. ओडी फैसिलिटी सैंक्शन करने का मतलब आप अभी ओवरड्रॉ कर दो, मतलब जितना बैलेंस है उससे ज्यादा आप निकाल सकते हो. और वो भी शाना होता है बैंक. जब ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देगा ना तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांग लेता है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी, कि आप अपना फर्नीचर गिरवी रखो, अपनी गाड़ी गिरवी रखो, अपने गहने गिरवी रखो, कुछ ना कुछ गिरवी रखो हमारे पास. तो मेरे को अगर समझो 2 लाख का ओडी फैसिलिटी चाहिए, 2 लाख का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब 2 लाख तक मैं एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकता हूँ. तो 2 लाख के बदले एटलीस्ट मेरे को 1 लाख रुपीस का या 1,50,000 का सोना, गाड़ी, कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा इन द बैंक एज मॉर्गेज सिक्योरिटी. बेच नहीं दूंगा उनको, उसको क्या रखूंगा? गिरवी रखूंगा. तो कल उठ के मैं पैसा लेके भाग गया तो ट्रस्ट होना चाहिए ना. पैसा लेके भाग गया तो बैंक तो लटक जाएगा, तो उसके लिए सिक्योरिटी है वो. ठीक है. तो ओवरड्राफ्ट ऐसे वैसे मिलता नहीं है. पहले तो बैंक आपका बैलेंस चेक करता है, आपकी क्रेडिट स्कोर चेक करता है, आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर आपको ओडी सैंक्शन होता है. ठीक है. हाँ बताओ. સર પણ એ લોકો મોર્ગેજ માટે વધારે તમારે રાખવું પડે? વધારે રાખે પણ આ અમુક તમારું રિલેશન ને સારા હોય, અધરવાઇઝ વધારે જ રાખવું પડે. 2 લાખની મોર્ગેજ રાખે તો તને 1 લાખનો ઓવરડ્રાફ્ટ મળે, બરાબર છે? ઓછા જ મળે. તમારા ગુડવિલ રિલેશન ને સારા છે તો પછી એટલી સિક્યોરિટીમાં ચાલી જાય, તો વધારે જ રાખવા પડે, બરાબર છે? એક્ઝેક્ટલી. હવે बैंक ओडी चल रहा है, इज इट बैंक नॉर्मल बैलेंस की ओवरड्राफ्ट? नॉर्मल बैलेंस होता ना तो बैंक इज योर एसेट, अपना पैसा पड़ा है, पैसा लेना बाकी है. बट ओवरड्राफ्ट है तो बैंक विल बिकम योर लायबिलिटी, क्रेडिटर. तो क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय बैलेंस बीडी. बाय बैलेंस बीडी कितना? 8,500. 8,500 मतलब अपना बैंक में पैसा पड़ा है कि ज्यादा निकाला हुआ है? ज्यादा निकाला हुआ. ये 8,500 अपना पैसा पड़ा नहीं है, दिस इज नॉट अवर एसेट. ये अपने को बैंक को देना बाकी है, ये अपने उधार लिया है. ओवरड्राफ्ट इट्स लाइक अ लोन, इट्स लाइक अ शॉर्ट टर्म लोन, लायबिलिटी. So all liabilities will have credit balance. इस जिसका कल बताया था ना, बैंक कैन हैव बोथ द बैलेंस, डेबिट एज वेल एज. मालूम कैसे पड़ेगा? सिंपल, बैंक लिखा है ना खाली बैंक तो डेबिट, और बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट. इज दिस क्लियर? इतना सा फर्क है. बैंक है तो डेबिट, बैंक ओडी है तो क्रेडिट. देन कैपिटल अकाउंट. व्हाट बैलेंस विल कैपिटल अकाउंट हैव? मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ, सॉरी.
purchase account. Purchase account, what balance will purchase account have? Huh? Debit. Why? Expense. Expense. To balance BD purchase is an expense. कितना? 4,000. लिख दो सब लोग 4,000. 4,000. Why? What does this mean to balance BD 4,000? Already purchased goods. इतना खर्चा हो चुका है. ठीक है. Sales 6,000. Which balance will sales account have? Why credit? इनकम है. क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी के सीडी. बीडी. बीडी brought down. BD brought down 6,000. Because sales is your income. Sales is your income. एकदम करेक्ट. राजा भैया और विवेक भैया. क्या आप ऐसे नाम देख के सोच सकते हो कि राजा क्रेडिट, विवेक डेबिट, राजा डेबिट, विवेक क्रेडिट, ऐसा कुछ सोच सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है. वो लोग मेंशन करना चाहिए तो दिया है वहां पे. राजा के बाजू में देखो DR, मतलब क्या? डेबिट. तो क्या लिखने का? टू बैलेंस. टू बैलेंस बीडी के सीडी. बीडी कितना? 2,000. बराबर छे. ओके. व्हाट डज दिस मीन? कौन है राजा हमारे लिए? डेटर. एसेट. डेबिट बैलेंस मतलब वो एसेट है, डेटर है, उससे पैसा ऐसे ही लेना है. काय को लेना है? पहले माल बेचा होगा, पहले गुड्स बेचा होगा, इसके लिए पैसा लेना है. विवेक कौन है? कैसे मालूम पड़ा? CR. सो बाय बैलेंस BD कितना है? 3,000. What does this 3,000 indicate? We have to pay to Vivek. We have to pay to Vivek. राजा से पैसा लेना है और विवेक को पैसा देना है. सिंपल. देख के ही मालूम पड़ जाएगा. देख के कल उठ के राजा आएगा, बोलेगा यार मुझे आपको कितना पैसा देना है फटाफट, तो आप क्या पूरा जर्नल उठा के देखोगे कितने सारे एंट्रीज है, कहाँ बेचा, कहाँ परचेज, कहाँ सेल? क्या देखोगे आप? सीधा लेजर. और क्या देखोगे उसमें भी? बैलेंस. कितना पैसा लेना है भाई? खटाक 2,000. चल रहा 2,000. कितना पैसा देना है विवेक को? खटाक सीधा लेजर में देखोगे 3,000. चलो दे दो इसको 3,000. फिनिश्ड. सिंपल. समझाय छे? પછી શું કરવાનું? નેક્સ્ટ વેજીસ. વેજીસ का बिल्डिंग. बिल्डिंग का क्या है बैलेंस? टू बैलेंस की बाय बैलेंस? बाय एसेट है. टू बैलेंस BD. ऑल एसेट्स डेबिट बैलेंस. Debit side is greater than credit side. What does this indicate? Already building has been purchased. It is there in the books. Worth? बिल्डिंग कितने की है बिजनेस में? 5,000 की. ओके. अभी वो इतनी सी होती नहीं है, अभी उसमें 4-5 जीरो ऐड कर देंगे हम लोग. ठीक है. अमाउंट पे मत जाओ, एंट्री सम. रेंट भी 5,000 का. बिल्डिंग कितने की पड़ी हुई है आपके पास? 5,000 रुपीज की पड़ी हुई है. समझ में आया? नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड अकाउंट. व्हाट बैलेंस विल इट हैव? क्रेडिट बैलेंस. बाय की टू. बाय बैलेंस BD के CD. BD कितना है? 500 रुपीज. क्या लिखोगे यहाँ पे? डेट 1/1/10. व्हाट डज दिस इंडिकेट? ऑलरेडी यू हैव अर्नड अ कमीशन ऑफ 500. आपको कमीशन इतना मिला हुआ है. 500 रुपए का कमीशन मिला हुआ है. बात समझ आई? ऑल ऑफ यू क्लियर? ओपनिंग बैलेंस लिख दिया. इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है. इसका क्या अर्थ हुआ? न्यू अकाउंट. अभी तक ओपन नहीं था, अभी बना रहे हैं, अभी स्टार्ट होगा. ओके. ये माई बाप नहीं है इसका कोई. नो ओपनिंग बैलेंस. सबसे पहली एंट्री देखो आप लोग क्या दिया है? कैश बैंक विवेक टू सेल्स. कैन यू स्प्लिट इट अप? Cash to sale, bank to sale, Vivek to sale. What do you mean by this? You have sold goods to Vivek partly on cash and partly on credit. Can you post this entry on your own? Come on, start. Cash to sales 2,000. Start. तो कहाँ जाओगे? पहले कैश में लिखोगे टू सेल्स. सर 2K कहीं नहीं ना करना है. KMNO कुछ नहीं लिखने का.
कैश में सीधा सीधा लिखने का, टू सेल्स। सर અહીંયા 2000 से तो 2K न चाले भाई, फुल फॉर्म, नो के, नो एल फॉर लैक्स, नथिंग, पूरा जीरो मिलेगा, जीरो एग्जाम में, के वे मत लिखना, ठीक है, पूरा अमाउंट लिखना है। कैश में टू सेल्स, तो सेल्स में क्या लिखोगे, बाय कैश। कैश डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रहा है। फिर है बैंक टू सेल्स, सो बैंक में लिखना है टू बैंक, आ गया भोपाल, बैंक में टू बैंक, कैश में टू कैश, सेल्स में बाय सेल्स, पहुंच ही गया गांधी ना। ओके, दिस वुड बी बैंक में टू सेल्स अकाउंट, दिस इज 1000, डेट इज 1110। मैंने बोला है सेम अकाउंट में सेम नाम कभी नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा। बैंक में कभी बैंक नहीं दिखेगा, कैश में कभी कैश नहीं दिखेगा, इम्पॉसिबल। सो बैंक में टू सेल्स, तो सेल्स में क्या लिखना है, बाय बैंक। बैंक में टू सेल्स, सेल्स में बाय बैंक, ठीक है। और विवेक टू सेल्स, विवेक में क्या लिखना है, टू सेल्स 500, और सेल्स में क्या लिखना है, बाय विवेक, बाय विवेक 500, ठीक है। 1/1/2010। ट्राई करो नेक्स्ट वाला, क्या दिया है नेक्स्ट वाला, परचेज टू कैश टू बैंक टू राजा, हाउ विल यू स्प्लिट इट, परचेज टू cash, purchase to bank, purchase to Raja. It's what is the meaning? Purchase goods from Raja partly on cash and partly on credit. Let's start. Purchase to cash is how much? 800. So how will you post that? Purchase to cash 800. Purchase में to cash account 800 और cash में by purchase account. परचेज में टू कैश, कैश में बाय परचेज 800, दिस इज ऑन 5/1/10, ठीक है। परचेज में टू कैश, कैश में बाय परचेज। फिर परचेज टू बैंक 700, परचेज टू बैंक, परचेज टू बैंक, परचेज में टू बैंक, परचेज में टू बैंक 700 और बैंक में by purchase 700, परचेज में टू बैंक, बैंक में बाय परचेज, परचेज टू राजा 500, परचेज में टू राजा 500, राजा में बाय परचेज 500, परचेज में टू राजा, राजा में बाय परचेज, परचेज में टू राजा, राजा में बाय परचेज। Then it is building to cash to bank to Raja. How will you do that? Building to cash, building to bank, building to Raja. So what is the meaning? Partly on cash and partly on credit. लेकिन क्या खरीदा है आपने? Building, asset. So how will you split it? Building to cash. So building में to cash. Building में to cash कितना? 1000, तीनों 1000. Building to cash, date is 10th. बिल्डिंग में टू कैश, तो कैश में क्या आएगा? बाय बिल्डिंग, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, यही रिदम फॉलो करना, कभी मिस्टेक नहीं होगी। लालच में आके सब डेबिट साथ में लिखा, मतलब भोपाड़ा चालू, गड़बड़ चालू हो जाएगी आपकी। इज दिस क्लियर? याद रखना है आपको, बिल्डिंग में टू कैश, कैश में बाय बिल्डिंग, देन बैंक टू बिल्डिंग,
सॉरी बिल्डिंग टू बैंक है ना, बिल्डिंग टू बैंक। तो पहले बिल्डिंग में लिखना है टू बैंक 1000 और करस्पॉन्डिंग एंट्री बिल्डिंग में टू बैंक, बैंक में बाय बिल्डिंग, बैंक में बाय बिल्डिंग। इज दिस क्लियर? एंड देन आई थिंक इट इज बिल्डिंग टू राजा। तो बिल्डिंग में आएगा टू राजा, बिल्डिंग में आएगा टू राजा और राजा में आएगा बाय बिल्डिंग, राजा में आएगा बाय बिल्डिंग। घर वाले क्लियर? यहां तक समझा सबको? घर वाले एनी डाउट्स? सॉर्टेड ऑल ऑफ यू? ओके, अब लास्ट एंट्री, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका स्प्लिट एंट्री आ गया। विवेक टू प्रॉफिट ऑन सेल्स अकाउंट। अच्छा एक रह गया, सॉरी एक रह गया, कैश टू कमीशन रिसीव्ड। ये कर लेते हैं। कैश टू कमीशन रिसीव कैसे करना है? कैश में क्या लिखोगे? टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कैश में टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 2000 एंड करस्पॉन्डिंग एंट्री कमीशन रिसीव्ड में लिखना है बाय कैश 2000। ओके, दिस इज ऑन 12th। या लास्ट एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आ गई तो मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया पोस्टिंग का, ऐसा समझ लो। रॉन्ग, रॉन्ग, चांस છે કે ઉપર પણ હોઈ શકે પણ વધારે ना, रॉन्ग। इधर आप अमाउंट का हिंट नहीं ले सकते। विवेक टू प्रॉफिट ऑन सेल्स છે તો बिल्डिंग सेल बराबर हाँ, सपोज लॉस ऑन सेल हो तो શું एंट्री કરે? તો એ ઉપર આવે છે કારણ કે 3500 कैश टू प्रॉफिट ऑन जो सपोज यहाँ, अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है? एंट्री का मीनिंग समझा आपको? बिल्डिंग बेचा है, वेरी गुड। बैंक थी केम के प्रॉफिट आवेगा। नहीं, क्या बोला? बैंक टू प्रॉफिट? नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। सी बैंक टू प्रॉफिट ऑन सेल, रॉन्ग रॉन्ग, बैंक टू प्रॉफिट इज रॉन्ग। बिल्डिंग बिल्डिंग टू प्रॉफिट अच्छे। सी जो what is happening in the entry? What is happening in the entry? the building is being sold, so profit आया. Building is sold at a profit, partly on cash, partly on credit, right? 2500 loss बिल्डिंग 2500 लिए 500 रुपया में प्रॉफिट ना चले। Exactly. Building is worth, नहीं, building is worth 3000. 3500 છે ટોટલ। हाँ, तो बिल्डिंग છે ને 3000 ની બિલ્ડિંગ હતી, આપણે 3.5 માં વેચી છે, એમ થયું છે। ઓકે, 3000 ની બિલ્ડિંગ वी हैव सोल्ड फॉर 3500। सो एक्चुअली इसका स्प्लिट एंट्री है ना, बिल्डिंग टू प्रॉफिट है। ओके, कैसा? देखो पहले समझो आपने बिल्डिंग लॉस में बेचा होता, समझो आपने बिल्डिंग लॉस में 10,000 की बिल्डिंग आपने 8,000 में बेची, 10,000 की बिल्डिंग आपने 8,000 में बेची, तो क्या एंट्री करते आप? कैश लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग टू बिल्डिंग, करेक्ट? 8,000 की बिल्डिंग अगर आपने 10,000 में सेल की तो सो इट विल बी 8। हाँ, 10,000 की 8,000 में सेल, 10,000 की बिल्डिंग यू हैव सोल्ड इट फॉर 8,000, 10 की थी 8 में बेची, तो 2,000 का लॉस। तो कैश लॉस टू बिल्डिंग हुआ। इसको कैसे स्प्लिट करोगे? कैश टू बिल्डिंग कितना? 8 और लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग टू बिल्डिंग कितना? 2000, राइट और नो? तो क्या किया आपने? कैश टू बिल्डिंग कितना बताया? 8 और लॉस टू बिल्डिंग, लॉस टू
बिल्डिंग दैट वाज 2, सो लॉस टू कैश लिखा क्या आपने यहाँ पे? लॉस टू बिल्डिंग लिखा है, लॉस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, मतलब दिस इंडिकेट दैट लॉस is a cash expense or a non-cash expense? Why non-cash expense? Is cash going out? क्या हो रहा है? बिल्डिंग घट रहा है। तो एक्चुअली क्या हुआ है, आपकी बिल्डिंग थी कितने की? 10 की थी। पहले वो बिल्डिंग 10 से हो गई 8। डेप्रीसिएशन बोलते हैं ना अपन, तो डेप्रीसिएशन तो सालों के ऊपर होता है, ये झटके से आप 10 की बिल्डिंग बेचने गए, उसने बोला 10 नहीं दूंगा, कितना दूंगा? तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू घट गई, 10 से हो गई 8, तो दैट इज कॉल्ड एज लॉस, लॉस टू बिल्डिंग। तो पहले क्या हुआ, 10 का बिल्डिंग कितना हो गया? 8, तो बिल्डिंग घटा, एसेट घटा तो क्रेडिट, और लॉस हो गया अपना, लॉस बढ़ा तो डेबिट। अब वो 8 की बिल्डिंग आपने 8 में बेच दी, तो कैश आया, बिल्डिंग गया, कैश बढ़ा, बिल्डिंग घटा। तो पहले क्या हुआ, पहले बेचा नहीं, पहले 10 का बिल्डिंग घट के हो गया 8, पहले 10 का बिल्डिंग घट के हो गया 8, और फिर 8 का बिल्डिंग बेचा। समझ में आ रहा है? 10 का बिल्डिंग पहले हो गया 8, दैट इज लॉस, तो लॉस टू बिल्डिंग, एंड देन यू सोल्ड दैट बिल्डिंग, 8000 गया, 8000 आया। बोलने का मतलब जैसे लॉस इज रिलेटेड टू बिल्डिंग, वैसे ही प्रॉफिट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बिल्डिंग ओनली। अगर तुम इधर लॉस के लिए क्या एंट्री मारते हो, लॉस टू बिल्डिंग, तो प्रॉफिट के लिए क्या होना चाहिए? बिल्डिंग टू प्रॉफिट होना चाहिए ना। कैन इट बी कैश टू प्रॉफिट? कैन इट बी बैंक टू प्रॉफिट? कैन इट बी विवेक टू प्रॉफिट? दैट विल बी रॉन्ग। अगर तुम कैश टू प्रॉफिट मारते हो ना उधर, कैश टू प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट कैश इनकम हो जाएगा, कैश इनकम नहीं है, इट इज नॉन कैश। तो अभी अपना एग्जांपल में देखो क्या हो रहा है, प्रॉफिट के लिए नहीं आ रहा है, बिल्डिंग की तरफ कैश आ रहा है। बताता हूं, देखो आपका बिल्डिंग 3000 का था, उधर दिख रहा है बिल्डिंग में कितना है, प्रॉफिट कितना है? 500। तो आपका पहला स्प्लिट एंट्री होगा बिल्डिंग टू प्रॉफिट, बिल्डिंग टू प्रॉफिट मतलब क्या कि आपका बिल्डिंग जो 3000 का था ना, आप बेचने गए ना, तो कितने में बेचा? 3000। तो पहले 3000 का बिल्डिंग बना 3500, पहले 3000 का बिल्डिंग बना 3500, तो पहले बिल्डिंग बढ़ाओ, तो एसेट बढ़ा तो डेबिट, और एसेट बढ़ा तो फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा। तो एसेट बढ़ा और सामने फायदा हुआ, गेन, प्रॉफिट अकाउंट, तो एसेट बढ़ा तो डेबिट, प्रॉफिट, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। तो बिल्डिंग टू प्रॉफिट वुड बी 500। अब आपकी बिल्डिंग कितने की हो गई है? अब वो 3500 की बिल्डिंग गई और सामने 3500 आया, जो भी आया, कैश, बैंक, विवेक, डेटर, जो भी है। तो नाउ रेस्ट ऑफ द 3 यू कैन पोस्ट नॉर्मली, दैट वुड बी कैश टू बिल्डिंग। कितना था कैश टू बिल्डिंग? 2000। वो सेम टू सेम रहेगा अभी, क्योंकि बिल्डिंग कितने की हो गई है? पहले कितने की थी? कैसे पता चला 3000 की थी? दिया है। एसेट कितने का गया? कितने का गया? 3 का। याद है वो ऋतु का सेटलमेंट एंट्री लास्ट, कितने का कंप्यूटर गया था? 20 का। 18 में गया था, इसलिए 2 का लॉस। तो कितने का गया वही रिकॉर्ड होता है। तो बिल्डिंग कितने की थी? तो 3 में बेचने गए, तो उसने बोला 3.5 दूंगा, हम तो बोला अच्छी बात है। तो पहले हमने बिल्डिंग को बढ़ा के कर दी 3500, तो बिल्डिंग टू प्रॉफिट, और फिर 3500 की बिल्डिंग गई और 3500 आपके पास पैसे आए। सो कैश कितना आया? 2000। देन बैंक कितना आया? बैंक टू बिल्डिंग कितना? 1000। देन विवेक भी है ना, क्रेडिट में भी बेचा है, विवेक टू बिल्डिंग 500। ये पैसा लेना बाकी है, विवेक से पैसा लेना बाकी है। तो 3.5 की हुई पहले बिल्डिंग और फिर बेची। सो बोलने का मतलब कभी भी याद रखना, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट हो चाहे
लॉस हो तो एंट्री इज नॉट लॉस टू कैश या कैश टू प्रॉफिट. एंट्री इज नॉट लॉस टू कैश या कैश टू प्रॉफिट. एंट्री इज व्हाट, यहाँ पे क्या है, लॉस टू बिल्डिंग या बिल्डिंग टू profit. Profit and loss is not a cash expense or cash income. It is a non-cash expense and non-cash income. It is a non-cash expense and non-cash ही है वो, कभी कैश में होने वाला नहीं. Say for example, आपका बिल्डिंग था 10,000 का, आपका बिल्डिंग था और एक भी रुपया नहीं आया, पूरा ध्वस्त हो गया. एक भी रुपया नहीं आया, पूरा ध्वस्त हो गया, बिल्डिंग टूट गई, गिर गई, 10,000 की बिल्डिंग, क्या एंट्री करोगे? लॉस ऑन बिल्डिंग टू बिल्डिंग. विल यू राइट लॉस ऑन बिल्डिंग टू कैश? इज कैश गोइंग आउट? इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस. आर यू गेटिंग दैट? कोई और एसेट कम हो रहा है. तो जैसे लॉस के केस में बिल्डिंग घट रही है, वैसे प्रॉफिट के केस में क्या बढ़ रही है? बिल्डिंग पहले बढ़ेगी और फिर बिल्डिंग बेच के जो पैसा है वो पैसा बढ़ेगा. इज दिस क्लियर? कभी प्रॉफिट के अगेंस्ट कैश आएगा कि नहीं? प्रॉफिट और लॉस के अगेंस्ट कैश आएगा कि नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं. कॉलेज में, काफी कॉलेज में ये रॉन्ग पढ़ा देते, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना. कॉलेज में आपने जो आंसर दिया ना, वो आंसर करवा देंगे आपको. आपने क्या बोला मुझे? कैश टू प्रॉफिट. कैश टू प्रॉफिट करवा देंगे. इट इज वेरी रॉन्ग. कीप दैट इन माइंड. ये कंसेप्ट आपको सीए इंटर या डिग्री कॉलेज में कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लर्न करो. 12th के एंड में भी है थोड़ा सा. कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लर्न करोगे ना, तभी पता चलेगा कि कैश और नॉन कैश आइटम्स. तो ये नॉन कैश कैटेगरी में आता है. प्रॉफिट एंड लॉस आर अंडर कैटेगरी ऑफ नॉन कैश आइटम, नॉट कैश आइटम. इज दिस क्लियर? प्रॉफिट इज नॉट रिलेटेड टू कैश. प्रॉफिट इज रिलेटेड टू एसेट, बिल्डिंग. देखो एक और एग्जांपल लेते हैं. मुझे बताओ इसको स्प्लिट कैसे करोगे? सपोज आपकी एंट्री है कैश बैंक टू फर्नीचर टू प्रॉफिट. आपका कैश में 5,000, बैंक में 6,000, फर्नीचर में 8,000, प्रॉफिट में 3,000. हाउ विल यू स्प्लिट? इसको स्प्लिट कैसे करने का? देखो फर्नीचर था कितने का, बेचा कितने में? 11 में. 11,000 मिले आपको. तो पहले क्या करने का? फर्नीचर को बढ़ाने का. फर्नीचर 8 का कितना बना देने का? 11. तो पहली स्प्लिट एंट्री क्या होगी आपकी? फर्नीचर टू प्रॉफिट. कितना? अभी पहले 8 का 11 हो गया, अब बेचो 11 के अगेंस्ट 11 ले लो, तो कितना आएगा तुम्हारे पास? कैश टू फर्नीचर, बैंक टू फर्नीचर. कैश टू फर्नीचर कितना? 5. और बैंक टू फर्नीचर कितना? 6,000. ये सबको मर्ज करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये मिलेगा. इसको सबको मर्ज करो, ये इंडिविजुअल को मर्ज करोगे तो यही मिलेगा. देख रहे हैं यहाँ पे फर्नीचर दिख रहा है. डेबिट में कितना है? 3. और क्रेडिट में कितना है? 11. तो कैंसिल कैंसिल होके नेट कितना आएगा? 8. वैसे यहाँ पे देखो बिल्डिंग, डेबिट कितना किया बिल्डिंग, और क्रेडिट कितना किया? 1,000, 2,000 एंड 500. 3,500 की क्रेडिट, 500 की डेबिट. बिल्डिंग दिख रहा है? ये 500 से डेबिट हुआ और 3,500 से क्रेडिट हुआ. तो कंबाइंड एंट्री में इसके लिए 3,000 का क्रेडिट दिख रहा है आपको. दैट्स अ कंबाइंड एंट्री. गॉट इट? तो कंबाइंड एंट्री को स्प्लिट करते वक्त अगर प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, ये लफड़ा खाली प्रॉफिट के वक्त आता. लॉस के वक्त ये लफड़ा नहीं आता. लॉस के वक्त क्यों लफड़ा नहीं आता समझा? ये सीधा डेबिट में ही है, तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं. बट प्रॉफिट के केस में यू नीड टू बी अलर्ट. कैसे स्प्लिट करोगे एंट्री समझा? पहले क्या लिख देने का? फर्नीचर टू कितना, कितना फर्नीचर टू प्रॉफिट कितना? 3,000. फर्नीचर टू प्रॉफिट, प्रॉफिट का अमाउंट 3,000. और फिर ये सेम अमाउंट कैश टू फर्नीचर 5, बैंक टू फर्नीचर 6. कैश टू फर्नीचर 5, बैंक टू फर्नीचर. इसका मीनिंग क्या हुआ? पहले फर्नीचर क्या हुआ और फिर बेचा. 8 का 11 हुआ, फिर 11 में बेचा. समझ आई?
So what can we conclude once again? Loss and profit, are they cash expense, cash income, or non-cash expense, non-cash? Non-cash expense, non-cash income. What is the entry for loss? Loss on sale to asset, not cash. Loss on sale to goods lost by fire, lost by fire to goods या purchase. कभी cash नहीं आएगा जिंदगी में. So loss to asset, loss by fire, loss by flood, loss on sale to asset account. And what if it is profit? Profit to asset. Asset to profit. Asset बढ़ा, profit income. Loss expense बढ़ा, asset घटा. Loss की एंट्री क्या है? Loss on sale to asset. Profit की एंट्री क्या है? Asset to profit on sale. Loss on sale की एंट्री loss on sale to asset. और profit की एंट्री asset to profit. कभी भी cash नहीं आएगा. Non cash. Is this clear? समझाणु पक्कू. कोई भी प्रॉफिट लॉस याद रखना, इट इज नॉन कैश, जस्ट लाइक डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव. ओके, सेम वे. सो लेट्स पोस्ट दिस एंट्री नाउ. स्प्लिट करके बिल्डिंग वाली मेरे को बताओ कितने कितने एंट्रीज बने स्प्लिट करके अपने पास बिल्डिंग वाले? 4. कैसे करना है? सबसे पहली एंट्री क्या लिखना है? सबसे पहली एंट्री है आपकी बिल्डिंग टू प्रॉफिट ऑन बिल्डिंग. बिल्डिंग टू प्रॉफिट ऑन बिल्डिंग. हाउ विल यू पोस्ट इट? बिल्डिंग टू प्रॉफिट ऑन बिल्डिंग. ये सब लोग लिख दो उधर. 4 एंट्रीज है ना, कॉपी करके लिखो उधर, आपको रिवाइज करते वक्त याद रहेगा. ऑल 4 स्प्लिट एंट्रीज उधर ही लिखो, नोटबुक में लिखो या फिर जगह है तो इधर टेक्स्ट बुक में लिखो. 4 एंट्रीज लिखो सब लोग उधर ही सम के नीचे लिख तो पता चलेगा. उधर नीचे लिख दे. हाँ, सम के नीचे लिख दो ये 4 एंट्री. बिल्डिंग टू प्रॉफिट 500. कैसे मिला बिल्डिंग टू प्रॉफिट 500? 500 रुपया किधर से आया? नहीं, 500 किधर दिया हुआ है? प्रॉफिट वाला. तो प्रॉफिट दिया है वही, बिल्डिंग टू प्रॉफिट 500. गॉट इट? बिल्डिंग टू प्रॉफिट 500, कैश टू बिल्डिंग 1000, बैंक टू बिल्डिंग, सॉरी, कैश टू बिल्डिंग 2000, बैंक टू बिल्डिंग 1000 एंड विवेक टू बिल्डिंग 500. लिख दो. कैश टू बिल्डिंग, बैंक टू बिल्डिंग, विवेक टू बिल्डिंग. देखा? ये 4 एंट्रीज यू राइट डाउन. ओके, बिल्डिंग टू प्रॉफिट, कैश टू बिल्डिंग, बैंक टू बिल्डिंग, विवेक टू बिल्डिंग. नाउ अब देखो यहाँ पे सबसे पहला बिल्डिंग टू प्रॉफिट. हाउ विल यू पोस्ट दैट? बिल्डिंग में टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना? 500. बिल्डिंग में टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 500. This is happening on 20th. ठीक है. बिल्डिंग में टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 500, ये अकाउंट है. अच्छा, बिल्डिंग में टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, तो प्रॉफिट में बाय बिल्डिंग, प्रॉफिट में बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट 500. आप जो मुझे बोल रहे थे ना उसमें था कैश टू बिल्डिंग, सॉरी कैश टू प्रॉफिट. तो कैश टू प्रॉफिट कर दोगे ना तो इधर दिखेगा टू प्रॉफिट और इधर दिखेगा बाय कैश. वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है. बिल्डिंग में दिखना चाहिए प्रॉफिट. बिल्डिंग बढ़ा था. दिस क्लियर? देन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा दो लेकिन बेचो ना. बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है लेकिन बेचा नहीं है, तो खाली बिल्डिंग टू अप्रिसिएशन या प्रॉफिट, बिल्डिंग टू अप्रिसिएशन या प्रॉफिट तरह का प्रॉफिट ही हो. कैश नहीं आया है, समझा? अप्रिशिएट हुआ है. अप्रिशिएट वैल्यू बढ़ती है ना जमीन की. तुम्हारा जमीन तुमने लाख रुपए का खरीदा था, अभी जमीन का वैल्यू 2 लाख हो गया और घटने वाला नहीं है.
तो तुम 2 लाख बताओगे ना ट्रू एंड फेयर व्यू बिजनेस में जो हो रहा है, जैसे डेप्रिशिएट होता है, बाकी सब ऐसे डेप्रिशिएट होता है एक्सेप्ट फॉर लैंड एंड गोल्ड. दादा यार लैंड एंड गोल्ड को छोड़ के सब डेप्रिशिएट. સર હું કોઈ પણ વધારે દેખાડે નહીં ને ભાવ. દેખાડે નહીં એની મરજી, પણ દેખાડવું હોય તો દેખાડી શકે એમ. હા, પડે દેખાય નહીં, પણ કોઈ હોય ઈમાનદાર તો દેખાઈ શકે. અકાઉન્ટ્સમાં એ રીતના દેખાડવાનું હોય, જેન્યુઇન હોય તો. ઓકે, તમે થાઓ. बिल्डिंग में टू प्रॉफिट, प्रॉफिट में बाय बिल्डिंग. देन व्हाट? कैश टू बिल्डिंग. कितना कैश टू बिल्डिंग? कैश टू बिल्डिंग 2000. कैश में आएगा टू बिल्डिंग और बिल्डिंग में आएगा बाय कैश. कितना? तो अभी तो सीधा सीधा अमाउंट छापने का ऊपर से, कैश, बैंक, विवेक सबका. दिस इज ऑन 20th. બેંકમાં ટુ બિલ્ડિંગ. બેંકમાં ટુ બિલ્ડિંગ. હવે બેંકમાં ટુ બિલ્ડિંગ અને બિલ્ડિંગમાં બાય બિલ્ડિંગમાં બાય બેંક. 1000 रुपया ना, 1000 ना. बैंक में टू बिल्डिंग, बिल्डिंग में बाय बैंक 1000 रुपया. और भी कुछ है? વિવેકમાં हाँ, વિવેકમાં ટુ બિલ્ડિંગ विवेक में टू बिल्डिंग અને બિલ્ડિંગમાં બાય અને વિવેક માં ટુ બિલ્ડિંગ કેટલું? 500. અને બિલ્ડિંગ માં બાય વિવેક 500. ઓકે, આમાં જોવા જઈએ તો પછી આપણને તો એવું લાગે કે આપણે વિવેકના હજી બહુ બધા દેવાના બાકી છે. 2000 દેવાના બાકી છે. हाँ આપણે ક્યાં દેવાના બાકી છે? આપણે તો લઈ લીધા ને. क्या दे? આપણે લેવાના જ, આપણે વેચી છે બિલ્ડિંગ. આપણે એને લઈ લીધી બિલ્ડિંગ 3000 ની 3500 માં. તો આપણે 3500 માં કેશ આવી ગયા ને, બિલ્ડિંગ સામે આવ્યા ને કેશ. બિલ્ડિંગ પર તો આપી, હવામાં થોડી કેશ આવ્યા ખાલી. ફોકટના કેશ થોડી આપ્યા છે વિવેકે. 3.5 ની બિલ્ડિંગ પણ આપી તે એને. એના અગેન્સ્ટ he gave you 3000 અને 500 હજી લેવાના બાકી છે, એટલા માટે ડેબિટ કર્યું. સમજાણું? સમજો તું વિવેક છે, મને તને 2000 આપવાના હતા, તને મેં સેલ્સ કર્યું 500 નું. હવે 1500 નહીં, 2000 કેટલા? 2000 આપવાના હતા ને, 3000 આપવાના. 3000 આપવાના હતા મને તને, મેં તને ગુડ્સ વેચ્યા, તો હવે 2500 આપવાના છે. પછી મેં તને 3.5 ની બિલ્ડિંગ આપી, તે મને 3 આપી દીધા, 500 લેવાના હજી બાકી છે, તો નેટ મને તને કેટલા આપવાના? હવે 2000 ને. સમજાણું? મેં તને 3.5 ની બિલ્ડિંગ આપી ને, એના અગેન્સ્ટ તે મને 3000 આપ્યા છે. મને તારાથી 500 લેવાના બાકી, તો ગુડ્સ ના 500 લેવાના બાકી છે, બિલ્ડિંગ ના 500 લેવાના બાકી છે. અને પહેલા शुरू में 3000 આપવાના હતા, તો હવે I have to pay you 2000. That is what is shown over here. જે પ્રેક્ટિકલ ચાલે છે એ જ દેખાશે અકાઉન્ટમાં, કઈ ભલતું નહીં દેખાય. સમજાય છે? ऑल ऑफ यू क्लियर यहां तक? बिल्डिंग का पोस्टिंग समझा? बिल्डिंग का मेरे को बताओ घर वाले, एनी डाउट? मेरे को बोलो, लॉस ऑन सेल एंड प्रॉफिट ऑन सेल, आर दे कैश एक्सपेंस इनकम और नॉन कैश एक्सपेंस इनकम? Non-cash. यार ऑलवेज नॉन कैश. ओके, लॉस ऑन सेल में एंट्री होगी लॉस ऑन सेल टू एसेट, और प्रॉफिट में होगी एसेट टू प्रॉफिट. कॉलेज में किधर गलत गलत पढ़ाया तो मैडम से जरा बात करना, क्योंकि अभी गलत पढ़ाएगा, फिर आगे तुमको 9th चैप्टर है डेप्रीसिएशन, उसमें घड़ी घड़ी आएगा हर एक सब में लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, तभी बराबर एंट्री करेगा. लॉस टू एसेट, एसेट टू प्रॉफिट, उधर बराबर करवाता है, अभी गलत करवाएगा. सो पूछ लेना बराबर से बात करके इधर. ओके, और इधर आना क्या नहीं करेगा तो ज्यादा आर्ग्यू मत करना, ठीक है, चला लेना, जो भी करवाता है कर लेना, बट दिमाग में याद रखना ये करेक्ट है, एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट. ठीक है, अब क्या करने का? पोस्टिंग के बाद क्या करने का आपको? मुझे बताओ, कैश का कौन सा साइड बड़ा होगा? आंख बंद करके आप बता सकते हो. डेबिट साइड. वाई? बिकॉज इट इज एसेट. सब कुछ लेने का डेबिट में. 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13. 13 13 दोनों बाजू लिखने का. फिर क्या करने का? 13 माइनस 1800 कितना होता है? 11,200. क्या लिखेगा इसके अगेंस्ट? बैलेंस बाय
balance CD. Closing date, 31. last date of the month will become to balance BD on 11,200 on which date? 1-10, first date of the next month. क्या इंडिकेट करता है ये? 11,200 इतना पैसा पड़ा हुआ है, बराबर 6। बैंक का देखो कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है, 8,500, 9,500, 10,200, 10,200 minus 2,000, 8,200। क्या लिखने का? To balance CD, to balance CD will become next month by balance BD, by balance BD 8,200 ना, 8,200। क्या अर्थ है इसका? इतना बैंक को देना बाकी है, बड़ा ही उधार उठा लिया है हमने। ओके, हमारी क्रेडिट बड़ी खराब लग रही है, उधारी पे चल रहा है धंधा। 8,200 बैंक को देना बाकी है। परचेज, विच साइड विल बी ग्रेटर? ऑब्वियसली डेबिट। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सपेंस। 4,800, 5,000, 6,000 आ रहा है क्या टोटल? 6,000, 6,000, 6,000, difference is 6,000. What will you write? By balance CD, क्योंकि क्लोजिंग है, ये महीना बंद हो रहा है। रुशिल को वेरी गुड। रुशिल क्लियर? बैलेंस टू बैलेंस BD कितना? 6,000। डेट इज 1-10, बराबर 6, 1-10। नेक्स्ट वन, ए सेल्स अकाउंट। बताओ मेरे को कौन सा साइड बड़ा होगा? क्रेडिट ही बड़ा होगा, क्यों? इनकम है। 6 + 2 8 + 1 9, 9,500 आ रहा है ये, 9,500। डिफरेंस इज व्हाट? 9,500 minus 0, 9,500। डिफरेंस इज आल्सो 9,500। व्हाट विल यू राइट? 2 की बाय टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस 31,110 का, ये बन जाएगा बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD 9,500, 9,500, 1-10। ये हो गया आपका सेल्स। What next we have is राजा। राजा भैया चेक करो, which side is greater? डेबिट बड़ा है, 2,000, 2,000 दोनों बाजू लिख लो। 2,000 minus 1,500 is 500. What will you write here? By balance CD, by balance CD will become what? Sorry, to balance BD, बराबर 6, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। अब मुझे बताओ ये क्या इंडिकेट करता है? टू बैलेंस BD इन राजा। राजा इज आवर डेटर फॉर हाउ मच? 500। कितना पैसा लेना बाकी है उससे? 500। विवेक को बंद करो, विवेक को बंद करो। 3,000, 3,000 माइनस 1,000 कितना होता है? 2,000। ये क्या लिखोगे? यहाँ पे आ रहा है ना डिफरेंस, क्रेडिट बढ़ा है। सो टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD will become by balance BD 3,000. Date 1-10. By balance BD 2,000. Sorry, 2,000 difference. जितना टू बैलेंस है उतना बाय बैलेंस सेम। क्या इंडिकेट करता है? विवेक कौन है हमारा? क्रेडिटर। फॉर हाउ मच? कमीशन रिसीव्ड। अच्छा, बिल्डिंग, विच साइड विल बी ग्रेटर इन बिल्डिंग? चेक करो विच साइड? डेबिट साइड विल बी ग्रेटर, राइट? डेबिट साइड दोनों बाजू लिख लो। टोटल कितना आ रहा है? 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8, 8,500 आ रहा है। 8,500 आ रहा है। हेलो,
हेलो, आ रहा है कि नहीं? और डिफरेंस कितना आ रहा है? 1500 माइनस 3500, 5000 आ रहा है। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस CD on 31,110 and it will become to balance BD, to balance BD on 1 to 10. ओके, क्या इंडिकेट करता है ये बैलेंस बिल्डिंग में? इतना बिल्डिंग पड़ा हुआ है, 5000 का बिल्डिंग पड़ा हुआ है। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, विच साइड विल बी ग्रेटर? क्रेडिट साइड। देख के पता चल रहा है 2500, 2500, डिफरेंस इज 2500। क्या लिखोगे? टू बैलेंस CD on 31,110 and it will become what? By balance BD. क्या इंडिकेट करता है ये 2500? इतना कमीशन ऑलरेडी मिल चुका है, इनकम है, अर्न कर लिया आपने, इतना कमीशन ऑलरेडी अर्न कर लिया है, बराबर छे? या अलग अलग प्रॉफिट विच साइड इज ग्रेटर? साथे लखવાનું હતું બેટા। 500 क्रेडिट, 500 क्रेडिट माइनस 0, 500। क्या लिखोगे यहाँ पे? टू बैलेंस CD 31,110 एंड ये बनेगा बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD 1 to 10। कॉपी डाउन, कॉपी कॉपी। समझाए छे कि नहीं घरवाड़ा? वीडियोज ऑन, चलो निकालते हैं अभी। भौमिक, अर्नव, दक्ष पटेल, धूमेल, हर्ष मेहता, जसजील, क्रिश, विशा, पलक। वेट वेट, घाई नहीं करो, घाई नहीं करो, आराम, बी पेशेंट। बोलो, नॉट दैट पेशेंट। यस, आस्किंग समथिंग। हो गया, लिखा बैलेंसेस? कंफर्टेबल हाउ टू डू दैट बैलेंसिंग पार्ट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री बिल्डिंग वाली, ये समझ आई घर वाले? बिल्डिंग की एंट्री घर वालों को समझी? बिल्डिंग प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट या लॉस, इट इज रिलेटेड टू एसेट एंड नॉट टू कैश, ओके। સર હવે લેજરનું ડ્રોઈંગ લેશે કે જર્નલ? હવે જર્નલ પ્લસ લેજર ચાલુ કરવાના છે આપણે, એટલે પહેલા જર્નલ કરવાની, પછી એનું જ લેજર બનાવો। તો બોલે લેજર હાઈ નહીં કરો, નેક્સ્ટ સમ બીજો છે, હું બતાવું છું તમને। વી આર ડુઈંગ સમ નંબર 11, 11th sum we are 11th sum। डायरेक्ट पहला जर्नल પછી लेजर, 11th sum। पहले ये किया सबने? चलो डन। चलो 11th सम वी आर डूइंग। अभी इसमें जर्नल है फिर लेजर है, ठीक है, जो एग्जाम में आएगा आपको, कल का एग्जाम में नहीं, आगे एग्जाम में आएगा। बिल्डिंग नो टोटल इज 8,500. हाँ 8,500 जो ना 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 8 બધું લઈ લેવાનું બેલેન્સ अच्छा हमें 5 कंसीडर नहीं। अरे भाई બધામાં બેલેન્સ લેવાનું જ છે, ઓપનિંગ બેલેન્સ સાથે કરવાનું।
हेलो, टोटल लिखते हो, ओपनिंग बैलेंस लेना है, हाँ? मालूम है ना, सब कुछ डेबिट माइनस क्रेडिट या क्रेडिट माइनस डेबिट, एवरीथिंग, ये सब ले लेने का बैलेंस। हाँ चलो, now sum number 11 देखो, what is given, 11 sum, do you see any journal entries already given? क्या दिया, ट्रांजैक्शंस दिया है, ट्रांजैक्शंस दिया है तो पहले ट्रांजैक्शन की मदद से जर्नल करना है और उसके बाद लेजर। तो सब लोग एक साइड पे जर्नल ड्रॉ करो, पहले एक पूरा साइड जर्नल में जाएगा, वन साइड यू ड्रॉ फॉर जर्नल, नरेशन लखवानु छे, एक साइड मत करो, इनफैक्ट है ना, आप कितना करो बोलो, 3/4 करो, 3/4, 75% में जर्नल ड्रॉ करो, 1/4 में लेजर आ जाएगा, एक ही पेज में पूरा सम हो जाएगा आपका, एक ही साइड पे, 3/4 में जर्नल ड्रॉ कर लो, 3/4, और उसके नीचे 1/4 में आप लेजर बना लोगे, इसमें एक ही अकाउंट बनाना है। सोम बेचारा शॉक हो गया, सर क्या बोल रहे, एक ही, हाँ बोल जी, હા બધું થશે, એ બધાનો એવો જ આવે છે, સાઇટમાં ક્લિક છે, એ ખાલી કરી નાખી ને 12th ની માર્કશીટ, હા બસ ટેન્શન નહીં લે, ओके चलो फटाफट, एक ही अकाउंट है, देखो उधर हेडिंग पढ़ो क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर सीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। हम लोग कौन है, अबे सीता की गीता, वी हैव टू मेक सीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता, तो हम लोग कौन है, गीता, इन द बुक्स ऑफ गीता, इन द जर्नल ऑफ गीता, इन द जर्नल ऑफ गीता, पहले जर्नल एंट्रीज करने हैं, फिर कितने अकाउंट पूछे, हाउ मेनी अकाउंट देयर वाज टू प्रिपेयर, 1 सीताज अकाउंट, ओनली सीता, ओके, सब नहीं बनाने, कैश, बैंक, फिर आपका परचेज, सेल, सीता, सब नहीं बनाने, खाली सीता, और एग्जाम में भी ऐसा ही टाइप आएगा। चलो करते हैं शुरू, जर्नल किया ड्रॉ, पहले हम लोग कौन है याद रखना, हम लोग कौन है, सीता की गीता, गीता बिजनेस, किसका बिजनेस, गीता का बिजनेस। चलो, सीता's account shows a credit balance in the books of Gita, can you see that, Sita's account shows a credit balance in the books of Gita, that is balance. Will you have any journal entry for balance, will you have any journal entry for balance, એ તો બધા એસેટ અને લાયબિલિટી વર્ષમાં એક વખત, દર મહિને બેલેન્સ ની એન્ટ્રી ના આવે, બેલેન્સ ની કોઈ ઓપનિંગ એન્ટ્રી ન હોય, ઓપનિંગ एंट्री से नहीं होए, लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो देगा वो लोग पूरा लिस्ट, ग्रेटर, क्रेडिटर, फर्नीचर, बैंक, कैपिटल, सब ढूंढने का उधर, इसका एंट्री मत मार देना, ओपनिंग एंट्री, ओके, ओपनिंग बैलेंस का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता, बैलेंस इज जस्ट द डिफरेंस टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी, जो भी है। अब पहले वाला नो एंट्री, थर्ड वन क्या दिया है देखो, रिटर्न गुड्स टू सीता ऑन क्रेडिट, रिटर्न हमेशा क्रेडिट पर ही होता है, व्हाट इज द एंट्री, 3rd अप्रैल को हो रहा है, 3rd अप्रैल 11, क्या एंट्री करोगे, सीता अकाउंट डेबिट टू व्हाट, परचेज रिटर्न्स अकाउंट, सीता अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट, कितना, 500 रुपया, being goods returned to Sita, being
गुड्स रिटर्न टू सीता। वो पहले वाले लाइन का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब આટલા છે. क्या दिया है पहला लाइन पे? सीताज अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ गीता। कुछ लेना। हाँ, हम लोग गीता है। हाँ, सीताज अकाउंट इज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस। सीताज अकाउंट इज शोइंग अ सीता से लेना बाकी। सीता ऐसा credit। क्रेडिट। सीता को पैसा देना बाकी है। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब शी इज अवर। आर यू ऑल क्लियर विथ हु आर वी? हु आर वी? गीता। So think from the point of view of गीता। गीता के बुक में सीता का अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? क्रेडिट बैलेंस। मतलब हमें सीता को पैसा देना है। कितना देना था? 3000। उसकी कोई जर्नल एंट्री होगी बैलेंस की? नहीं। फिर ये महीना शुरू हुआ, ये महीने में हमने क्या किया? उसको रिटर्न किया। तो सीता टू परचेज रिटर्न। ये समझ में आई फर्स्ट एंट्री? ऑल ऑफ यू क्लियर घर वाले? फर्स्ट एंट्री क्लियर? सीता टू परचेज रिटर्न्स। देन सेकेंड वाली पढ़ो। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सीता 3000। परचेज अकाउंट डेबिट टू सीता अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू सीता अकाउंट। कितने का खरीदा गुड्स? हाँ, 3000 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सीता। Being goods purchased from Sita. This is happening on 5th. Okay. Next one. Paid cash to Sita. Paid cash to Sita. क्या एंट्री होगी गीता के बुक में? Sita to cash. Sita to cash. All of you understanding the entries? हम लोग कौन है? क्या है हम लोग? गीता है, बराबर है। सीता टू कैश, वी आर डेटर, शी इज क्रेडिटर। ओके, हम लोग डेटर है, वो क्रेडिटर। हमारी क्रेडिटर हुई ना सीता, उसका क्रेडिट बैलेंस है शुरू में दिया है। सीता टू कैश कितना? 800। सीता टू कैश 800 बीइंग कैश पेड टू सीता। Being cash paid to Sita. Got that? Sita liability घटी और cash घटा। Next one. What next you have? Received cash from Sita 2000. Received cash from Sita 2000. क्या होगा? Cash to Sita. Cash to Sita. So cash account debit टू सीता अकाउंट। कितना आएगा? 2000। सीता से पैसा आया, कैश टू सीता 2000 बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सीता। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सीता। सो गुड्स बेचा भी है, इसके लिए उसने पैसा भी दिया है अपने को 10th को। What next? Return goods to Sita 700. Return goods to Sita क्या एंट्री होगी? सीता टू परचेज रिटर्न। लाइबिलिटी घटी और परचेज रिटर्न इज इनकम। सो सीता अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट 700। सीता अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट 700 बीइंग गुड्स रिटर्न to Sita. Being goods returned to Sita. ये समझ रहे हैं एंट्री सबको? Any doubt till now in any of the entries? घर वाले? हीर गांधी, स्नेहा मेहता, ध्रुविशा, वैभवी, साक्षी संघवी, all clear? Got it all of you? Okay. एंट्रीज हो गई। अभी लास्ट एंट्री पढ़ो। लास्ट एंट्री क्या दिया है? पेड 3700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। फुल सेटलमेंट। तो बताओ मुझे पहले तो सीता को कितना पैसा देना बाकी था? हाउ विल यू फाइंड आउट सीता को कितना पैसा देना? डेबिट माइनस क्रेडिट या क्रेडिट माइनस डेबिट। देना था मतलब शी इज हु? क्रेडिटर। तो क्या करोगे? क्रेडिट माइनस
तो कितने सारे क्रेडिट है सीता के, सबका करते बैठोगे? इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है। क्या क्या करते हो आप? सबका डेबिट माइनस क्रेडिट नहीं करना है जर्नल से, तो आप कहां से देखते हो? लेजर। तो लास्ट एंट्री छोड़ देने का, लास्ट एंट्री छोड़ देने का, मेक द लेजर, क्योंकि जो बैलेंस आएगा वो पैसा देना है, अपने आप आ जाएगा ना आपको, वापस करने की जरूरत है कि नहीं? नहीं, तो बनाओ ले। एक एंट्री का जगह छोड़ दो, इधर 3 लाइन छोड़ दो, 4 लाइन, लीव 4 लाइन, 4 लाइन छोड़ो और नीचे एक लेजर ड्रॉ करो, सिंगल लेजर ड्रॉ करो। और क्रेडिट माइनस डेबिट से भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, अपने पास शॉर्टकट है, तो काय को इतना हड़ा पड़ू करने का। जब शॉर्टकट मिल रहा है, व्हाई डू ऑल दैट लॉन्ग कट मेथड? बताओ मेरे को, किसका अकाउंट बनाने को बोला है? खाली सीता। हैव दे आस्क्ड यू टू मेक परचेज रिटर्न अकाउंट और परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट? हैव दे आस्क्ड यू? नहीं पूछा है। किसका पूछा है? खाली सीता। एक ही अकाउंट बनाने का। कौन सा? सीता मैया का अकाउंट, बस एक ही अकाउंट। नो कैश, नो परचेज रिटर्न्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो? और कोई अकाउंट बनाने का नहीं। तो क्या बिजनेस में भी वो खाली सीता का अकाउंट बनेगी? वो तो सब बनेगी, बिजनेस में तो सब बनेंगे। हमको नहीं पूछा गया, हमको खाली एक पूछा गया। हमारा काम आसान किया वो लोग, हमको दुआ दो थोड़ा सा, ठीक है? हमारा काम इजी कर दिया। ओनली सीताज अकाउंट, वन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, particulars, JF, amount. All of you are getting this? What are we doing? We are in whose books? We are गीता और सीता। We are गीता। गीता का पहले हमने जर्नल बना लिया, ये आपको सब में दिया हुआ होता था अब तक, ये हमने बनाया ट्रांजैक्शंस के थ्रू। गॉट इट? और उसके बाद प्रैक्टिकली बुक्स में सब अकाउंट बनेंगे। सीता अकाउंट बनेगा, परचेज रिटर्न बनेगा, परचेज बनेगा, कैश बनेगा, सेल्स बनेगा, सब बनेंगे। लेकिन हम कौन सा दिखा रहे हैं सिर्फ? क्यों? वही पूछा है, तो पूछा है वही बनाने का। अब तक के सब में क्या दिया था ऊपर? नेसेसरी लेजर अकाउंट, प्रिपेयर नेसेसरी, तो सब बना देने का। नेसेसरी मतलब सब। क्वेश्चन में दिया है कि भाई या सीता बनाओ, या सीता एंड परचेज बनाओ, या सीता एंड कैश बनाओ, उतना ही बनाने का, कुछ बनाने का एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। बात समझ आई? और मैंने आपको बताया भी था, एग्जाम में आपको कितने सारे अकाउंट पूछेंगे? मैक्सिमम 3 to 4। ट्रांजैक्शन में तो बहुत होंगे, लेकिन अकाउंट सबके सब बनाने नहीं बोलेंगे आपको। कितने बोलेंगे? 3 से 4 ही बोलेंगे। तो ध्यान से पढ़ना कौन सा पूछा है। चलो शुरू करें। सीताज अकाउंट, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ लेजर पोस्टिंग? 3. Opening balance, posting, closing balance. What is the opening balance of Sita? पढ़ो first line. 1000. Is it debit balance or credit balance? Underline that credit balance. Underline that credit balance. So what will you write here? To balance BD के buy balance? Buy balance. Buy balance BD. BD on 1/4/11 कितना है? 1000। ये समझ में आया? बाय बैलेंस बीडी क्यों लिखा? दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन पे दिया हुआ है। इसकी कोई जर्नल एंट्री होती है? बैलेंस बीडी टू सीता अकाउंट, सीता टू बैलेंस बीडी, ऐसा कोई जर्नल एंट्री देखा है? बैलेंस का कभी नहीं होता। ये जर्नल में नहीं था, ये सीधा लेजर में दिखेगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? We have to pay 1000 to Sita at the beginning of the month. सीता मैया को 1000 रुपए देने थे एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। फिर इस महीने में ये सब किया, तो इसकी भी क्या करनी है? पोस्टिंग करनी है। अभी ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं पोस्टिंग, बी अलर्ट। सीता टू परचेज रिटर्न्स, कैन यू सी दैट? सीता टू, तो कैसा करते हो आप? सीता में टू परचेज रिटर्न लिखो। सीता में टू परचेज रिटर्न्स कितना?
500 3rd April 11 सीता में 2 परचेज रिटर्न और परचेज रिटर्न में बाय सीता है क्या? मारो गोली डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। जो पूछा है वही बना रहे हैं। सीता का अकाउंट में जो दिख रहा है वही दिखाएंगे ना। परचेज रिटर्न अकाउंट है क्या? हवा में लिखोगे? छोड़ दो उसको। समझ में आया? प्रैक्टिकली नहीं छोड़ना, प्रैक्टिकली हर एक अकाउंट बनता है। थियोरी कर रहे हैं इसके लिए, एक जिसका पूछा उसका करो पोस्ट। अब नेक्स्ट वन, परचेज टू सीता। एक शांति रखो, आराम से। परचेज टू सीता, तो पहले परचेज में क्या लिखोगे? टू सीता, बट परचेज अकाउंट है तो छोड़ दो। फिर सीता में क्या लिखोगे? बाय परचेज। ऐसे ही करना, पहले डेबिट फिर सोचवानी जरूरत છે, બહુ જરૂરત છે, તને હમણાં જ વોર્નિંગ આપું છું ના, સોચવાની જરૂરત છે જ। ઠીક છે, શોર્ટકટ કરીશ પણ ક્યારેક ને ક્યારેક સિલી મિસ્ટેક માં અટકી। सोचवाનું જ છે, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। तो परचेज में टू सीता वो नहीं है, अब सीता में बाय परचेज, सीता में बाय परचेज। सर परचेज रिटर्न બે છે તો બે અલગ કરવાના, બે अलग अलग डेट अलग છે ને, तो अलग। ओके, देन दिस इज ऑन 5th April। ठीक है, परचेज में टू सीता, सीता में बाय परचेज। तीसरा क्या है? सीता टू कैश। सीता टू कैश कैसे लिखना है? सीता में टू कैश अकाउंट, कितना? 800, डेट इज 6th April। और कैश में क्या आएगा? बाय सीता, बट डू वी हैव कैश अकाउंट? इग्नोर। समझ रहे हैं इंडिविजुअल अकाउंट पोस्टिंग घर वाले? गेटिंग इट? ध्रुव भानुशाली, धीर भानुशाली, अर्णव, अश्विन, अविष्का। चलो नेक्स्ट वन, कैश टू सीता। पहले कैश में टू सीता है क्या? नहीं। फिर सीता में बाय कैश, सीता में बाय कैश, कितना? 2000। पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर ही क्रेडिट। डीसी, डीसी नॉट मार्वल, डीसी। देन क्या है? सीता टू परचेज रिटर्न। सीता में क्या लिखोगे? टू परचेज रिटर्न, कितना? 700। सीता में टू परचेज रिटर्न 700। दिस इज ऑन ओके। सीता में टू परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न में बाय सीता, लेकिन वो हमारे पास है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं है। मैं पैर हिलाने का आदत है क्या? पक्का? ये आगे आगे जा रहा है घड़ी घड़ी। नाउ सीता में टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में बाय सीता, वो नहीं है हमारे पास। हो गया सब? नाउ लेट अस शट डाउन सीताज अकाउंट। मुझे बताओ कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है? चेक क्रेडिट बड़ा है। आर यू श्योर? व्हाट इज द टोटल? 3 + 2 5 + 1 6 राइट एट बोथ द प्लेसेस 6 હવે ગમ્મત 6 minus this is 2000 right? 5 + 5 13 or 7 2 6 minus 2 is 4। मतलब बैलेंस अगर लिखना मत, लिखते तो कितना आता? 4 आता। मतलब क्या? सीता को पैसा देना है कि सीता से पैसा लेना है? कैसे मालूम पड़ा देना है? क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, मतलब शी इज अवर क्रेडिटर, तो पैसा देना है। कितना देना है? 4। अब लास्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो। पेड हर 3700 इन, देना था 4 और दिया कितना? 7। समझा? 4 मिल गया ना टपक से। ये सब जर्नल से क्रेडिट माइनस डेबिट करने की जरूरत नहीं है, सीधा लेजर से करने का। सीधा लेजर से क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट में सब कुछ लेने का, ओपनिंग बैलेंस भी लेने का 1000। क्रेडिट में 6 था, डेबिट में 2 था, कितना देना था? 4। कितना दिया?
तो 300 रुपए का डिस्काउंट। तो पहले जर्नल एंट्री पास करो उसकी। क्या एंट्री करोगे आप? सीता टू कैश, सीता को पैसा दिया ना, सीता अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट्स इट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आप करते हो ना सेटल्ड सेटल्ड सो मेनी टाइम्स। सीता टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सीता को कितना दिया? देना था 4, दिया 3700। 300 रुपया क्या हो गया आपका? डिस्काउंट। नरेशन लिखना, बीइंग सीता's अकाउंट सेटल्ड, बीइंग सीता's अकाउंट सेटल्ड, बीइंग सीता's अकाउंट सेटल्ड। इज दैट क्लियर? अब इसको स्प्लिट करना है और पोस्ट करना है। पहले स्प्लिट फिर पोस्ट। स्प्लिट, स्प्लिट क्या होगा? सीता टू कैश, सीता टू डिस्काउंट। पहले बताओ सीता टू कैश कैसे करोगे? सीता टू कैश, सीता में टू कैश, डेबिट साइड पे टू कैश, कितना? 3700। सीता में टू कैश, कैश में सीता में टू कैश, कैश में बाय सीता। बट डू वी हैव कैश अकाउंट? नो। फिर क्या? सीता टू डिस्काउंट 300। तो कैसे लिखने का? सीता में टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना? 300। सीता में टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300, और डिस्काउंट रिसीव्ड में, डिस्काउंट रिसीव्ड में बाय सीता। वो अकाउंट नहीं है हमारे पास, बराबर छे। नाउ विल देयर बी एनी बैलेंस? व्हाई देयर इज नो बैलेंस? સેટલડ, સેટલડ અકાઉન્ટ વિલ નેવર હેવ એની બેલેન્સ. સેટલ થઈ ગયું, પૈસા આપી દીધા, કઈ બેલેન્સ બચશે? ચેક કરી લો, બચશે જ નહીં. बताओ मेरे को, लास्ट स्टेप मैंने क्या किया? अगेन आई एम रिपीटिंग. हमारे पास ये 2 एंट्रीज नहीं थे, बराबर है? हमने क्या किया? सब एंट्रीज पोस्ट किया, फिर हमने ढूंढा बैलेंस. लेकिन डिड वी राइट दैट बैलेंस? नो. बैलेंस लिखने का नहीं, खाली ढूंढने का. कैसा ढूंढा? बैलेंस कैसा ढूंढा? ये 4000 क्रेडिट माइनस डेबिट. इसका वर्किंग नोट बना लो नीचे. क्रेडिट माइनस डेबिट. क्रेडिट कितना था? 6. डेबिट कितना था? 2. तो बैलेंस कितना था? 4. बराबर छे. क्रेडिट माइनस डेबिट किया हमने. क्या जर्नल से किया क्रेडिट माइनस डेबिट? कहां से किया? शॉर्टकट, सीधा लेजर. क्रेडिट माइनस डेबिट किया, कितना पता चला कितना देना है उसको? 4. लेकिन दिया कितना? 3700. तो 300 रुपया डिस्काउंट. 300 रुपया डिस्काउंट. एंट्री क्या बनी आपकी? ये समझ आया? सीता टू कैश टू डिस्काउंट. सीता टू कैश टू डिस्काउंट सेटल किया. सीता लायबिलिटी घटी, कैश एसेट घटा, और डिस्काउंट इनकम. और फिर इसको पोस्ट किया. पोस्ट करते वक्त वापस क्या करने का? स्प्लिट. स्प्लिट एंड देन पोस्ट. सीता टू कैश, सीता टू डिस्काउंट. Got it? Will there be any balance now? It will tally, क्योंकि पैसा दे दिया पूरा का पूरा. समझायु? This is how we will do. This is the journal plus ledger combination. We will do more sums in the next lecture. Tomorrow, very 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 important test. खतरनाक पेपर है, पग दुर्जी जैसे एवो खतरनाक पेपर. ओके, જોરદાર મહેનત કરીને આવજો, મહેરબાની કરીને. આ ટેસ્ટ લખશો ને ક્લાસરૂમમાં બેસીને, your brain will open up. Okay, it is very much beneficial. Do not miss the opportunity of writing the test. जितना आता है, जैसा प्रैक्टिस हुआ है, मैं पहले तो करो ही प्रैक्टिस, बट एब्सेंट मत रहना. यू रिमेन एब्सेंट, यू आर लूजिंग अ बिग अपॉर्चुनिटी. तुम्हारा ब्रेन लेथार्जिक हो जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा किधर है, इंप्रूवमेंट होएगा ही नहीं. सो यू कम एंड राइट द टेस्ट इन दैट एग्जाम एनवायरनमेंट, लिटिल SVDD स्कूल. Okay, 30 marks, 2 questions, 15-15, just like last time, 1 hour 15 minutes. But here तुम्हारा मैंने थोड़ा आसान किया है काम. 2 सम में से एक में ही नरेशन लिखना है, एक में नरेशन नहीं लिखना. ठीक है? 2 सम्स ही है, 2 सम्स. एक में नरेशन છે, એક માં નરેશન નથી લખવાનું. ઠીક છે? 15-15 બંને. ઓકે,
Sunday tomorrow at SVDD. Stick to your respective batch. Doubts है तो